बीआरएस के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कांग्रेस हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए इल्जाम लगाया है कि मौजूदा हुक्मरान किसानों के मसाइल के बजाय शराब की फरोख्त में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि रियासत की तारीख में ये पहली बार हो रहा है कि महकमा आबकारी के सेक्रेटरी शराब बनाने वाली कंपनियों के चक्कर लगा रहे हैं और उन्हें मौसम गर्मा के लिए ज्यादा बियर तैयार करने की हिदायत दे रहे हैं। श्रीनिवास गौड़ के मुताबिक हुकूमत की तमाम तर तवज्जो शराब से हासिल होने वाली आमदनी पर मरकूज है, जबकि किसान यूरिया और दीगर खादों की किल्लत की वजह से परेशान हाल है। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि काश हुकूमत ने इतनी ही तंदही और दिलचस्पी किसानों को वक्त पर यूरिया फराहम करने में दिखाई होती तो आज देही इलाकों में हाहाकार न मचती। साबिक वजीर ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर अपनी तरजीहात दुरुस्त करे और शराब के फरोग के बजाय ज़राअत और किसानों की फलाह व बहबूद पर तवज्जो दे। उनके इस बयान ने सियासी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है और अपोजिशन इसे किसान मुखालिफ पॉलिसी करार दे रही है। నిన్న ఎక్సైజ్ కమిషనర్ గారు ఎక్సైజ్ సెక్రటరీ యూబీ బీర్ కంపెనీలకు వెళ్ళి దాంతోపాటు ఇంకా 3-4-5-6 కంపెనీలకు వెళ్ళి బీరు ఎక్కువ తయారు చేయండి, ఎండాకాలం వస్తుంది, సమ్మర్లో ఎక్కువ బీరు తాగుతారు, మరి డిమాండ్ తగ్గట్ల బీరు ఉండాలి అని చెప్పి ఈ రాష్ట్రంలో అనుకుంటా ఒక సెక్రటరీ కమిషనర్ పోయి కంపెనీలకు వెళ్ళి బీరు బాగా తయారు చేయండి, ఎక్కువ స్టాక్ పెట్టండి అని చెప్పినటువంటిది స్వాతంత్ర్యం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక సెక్రటరీ పోయి బీర్ కంపెనీకి తయారు చేయండి అని చెప్పే సందర్భాలు అయితే కనపట్లేదు. తాగడానికి బీరు తాగడానికి విస్కీ తాగడానికి స్టాక్ ఫుల్ తయారు చేయండి అని చెప్తున్నారు. కానీ వర్షాలు పడుతున్నాయి, నాటేసేది ఉంది, మరి పిండి సంచులు కూడా ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పి అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా పోయి గోడౌన్లలో పోయి చెక్ చేసి ఎన్ని ఎకరాలు నాటేస్తున్నారు, ఎంత సరిపోతుంది యూరియా అని కూడా దాని మీద కూడా దృష్టి ఉంటే బాగుండేది. సేను కోతకు వచ్చింది, మరి ఇన్ని వేల లక్షల ఎకరాలు వరి వేసిండ్రు, ఇంత ధాన్యం వస్తుంది, ఇన్ని క్వింటాల ధాన్యం వస్తుంది, దానికి సరిపోయేటువంటి బస్తాలు ఉన్నాయా లేదా అని కూడా చెక్ చేసి ఉంటే బాగుండే. बीआरएस के सीनियर रहनुमा और एमएलसी दासूजो शरावन ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से ट्रैफिक चालान की रकम बराह रास्त बैंक अकाउंट से काटने की तजवीज़ को मुकम्मल तौर पर गैर आईनी करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने वजीर आला के इस बयान पर सख्त तनकीद की और सवाल उठाया कि क्या किसी भी नई पॉलिसी का ऐलान करने से पहले माहिरीन से मुशावरत की जाती है या महज अवामी सतह पर गैर संजीदा बातें की जा रही हैं। शरावन के मुताबिक शहरियों के बैंक अकाउंट से उनकी इजाजत के बगैर रकम निकालना कानून की खिलाफ वर्जी है और हुकूमत को इस तरह के आमिराना फैसले करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आला को किसी भी निज़ाम में तब्दीली लाने से पहले इसके कानूनी और आईनी पहलुओं पर गौर करना चाहिए, न कि अपनी मर्जी के मुताबिक ज़वाबित बनाना चाहिए। उनका कहना था कि इस किस्म की तजावीज़ से अवाम में बेचैनी फैलेगी और ये जमहूरी अक़दार के मुनाफी है। बीआरएस लीडर ने मुतालबा किया कि हुकूमत ऐसी गैर मंतकी तजावीज़ से बाज रहे और अवामी मसाइल को हल करने के लिए कानूनी दायरे में रहकर काम करे। ఒక 5 పేజీల లేఖ గౌరవనీయులు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి రాయటమైంది. మీరు ఆటో డెబిట్ సిస్టమ్ ఏదైతే మీరు ప్రవేశపెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారో అది పూర్తిగా కూడా రాజ్యాంగ విరుద్ధం, మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్స్కు విరుద్ధం, రైట్ టు ప్రైవసీ యాక్ట్కు విరుద్ధం. మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా బ్యాంకులను అదేదో రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రైవేట్ బ్యాంక్ అయినట్టుగా వాటిని నేను డైరెక్ట్గా అకౌంట్ డీటెయిల్ తీసుకుంటా, అందులో నుంచి డైరెక్ట్గా డబ్బులు నేను రెజ్యూమ్ చేసుకుంటా, డెబిట్ చేసుకుంటా అని చెప్పనైతే మాట్లాడుతుండో ఇది పూర్తిగా కూడా రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన, రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకము, చట్టాలకు వ్యతిరేకము, రైట్ టు ప్రైవసీ యాక్ట్కు వ్యతిరేకము, ఫండమెంటల్ రైట్స్కు కూడా ఇది వ్యతిరేకం. రేవంత్ రెడ్డి గారు నాకు అర్థం కావట్లేదు, మీరు ఎవరితో మాట్లాడతారా, ఉట్టినే నోటికి ఏదొస్తుంది మాట్లాడతారా మీరు? వెన్ యూఆర్ టాకింగ్, డూ యూ థింక్ ఆర్ అట్లీస్ట్ డూ యూ టాక్ టు సంబడి?
ఏం మాట్లాడాలా, ఏం మాట్లాడొద్దు, ఏం పాలసీ ఎట్లా తయారు చేయాలా, ఓ కాన్సిక్వెన్షియల్ థింకింగ్ ఏమైనా ఆలోచిస్తారా లేదా? ఏది పడితే అది వచ్చేసి ఫట మాట్లాడేస్తారా? సినిమానా ఇది? బాలకృష్ణ సినిమా డైలాగ్ ఏదేమన్నా? బాలకృష్ణ సినిమా డైలాగ్ సార్ ఇది? ఇట్స్ ఎ గవర్నమెంట్, ఇట్స్ ఎ పాలసీ. ఎ పాలసీ ఈజ్ సపోజ్ టు హ్యావ్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ శాంటిటీ. ఎవడిచ్చాడండి అధికారం నీకు? నాకు చెప్పు ముఖ్యమంత్రి గారు. దేశానికి రాజువా నువ్వేమన్నా? క్రౌన్లెస్ కింగ్ అయింది? భారత రాజ్యాంగం ఏం లేదా? ఇష్టం వచ్చినట్టు మంది బ్యాంకులను మొత్తం లోబర్ చేసుకొని డబ్బులు వసూలు చేస్తావు. వీలవుతుందా? ప్రజెంట్ లాస్ అలౌ చేస్తాయా? నువ్వు రాస్తేవి అలా పేపర్లలో ఫ్రంట్ పేజీలలో వార్తలు వచ్చాయి, ఇంగ్లీష్ పేపర్లో, తెలుగు పేపర్లో అన్ని వార్తలు వచ్చాయి, టీవీలలో చర్చలు అయిపోయాయి. ఖతం, నీ పని అయిపోయింది. నీకు సెన్సేషనలిజం అయిపోయింది. పేపర్లో వార్తలు వచ్చినాయి. ప్రజల్ని మభ్యపెట్టాలా, అదిరించాలా, బెదిరించాలా? ఇది ఎక్కడ రాజకీయము? దిస్ ఇస్ లైసెన్స్డ్ ఎక్స్టార్షన్ రేవంత్ రెడ్డి గారు. मंचेरियाल जिला की क्यातनपली म्यूनिसिपैलिटी में इस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब मकामी लोगों ने वजीर विवेक वेंकट स्वामी का घेराव करते हुए तरक्याती कामों में ताखीर पर सख्त एहतजाज किया। मुश्तइल शहरियों ने वजीर से सवाल किया कि हुकूमत बने 2 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद इलाके में सड़कों की तामीर और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम क्यों नहीं की गईं। एहतजाज के दौरान जब अवाम ने अपने मुतालबात पर जोर दिया तो वजीर विवेक वेंकट स्वामी और डीसीसी सदर रघुनाथ रेड्डी ने मुबैना तौर पर शहरियों के साथ सख्त लहजा इख्तियार किया और नाज़िबा सलूक किया। इस रवैये ने अवाम के गुस्से को मजीद भड़का दिया और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने हुकूक का मुतालबा किया। मकामी लोगों का कहना है कि इंतखाबात के वक्त बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन अब अवामी मसाइल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुदाखलत करके सूरत-ए-हाल को काबू में किया, ताहम अवाम ने वाज़े किया कि जब तक सड़कों का काम शुरू नहीं होता उनका एहतजाज जारी रहेगा। అడగడం తప్ప మొన్న పెట్టుకుంటున్నావా రోడ్డు చేస్తా కదా నేను ఫస్ట్ రోడ్ ఏం లేదు. మీరు గవర్నమెంట్ ఎందుకు లేదు రోడ్డు? ఇది ఇంతకు ముందు ఉన్న రోడే. చాలా రోజులకి ఇప్పుడు ఈ రోడ్డు కావాల్సింది ఎన్ని రోజులు? దాదాపు 10 సంవత్సరాలు మనం ఏం చేసి हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर के तहत आने वाले बदवेल में एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग गोदाम में अचानक हौलनाक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि शोले आसमान से बातें करने लगे और चारों तरफ काले धुएं के बादल छा गए, जिसकी वजह से करीबी बस्तियों में रहने वाले मकीनों में शदीद खौफ व हरास फैल गया। वाक़ये की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने की जिदोजहद शुरू कर दी गई। प्लास्टिक का सामान होने की वजह से आग तेजी से फैल रही है, जिसके बाइस फायर फाइटर्स को ऑपरेशन में सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मकामी पुलिस ने हिफाजती इक़दामात के तौर पर मुतासरा इलाके की नाकाबंदी कर दी है और आसपास के घरों को खाली कराने की कोशिश की जा रही है। खुशकिस्मती से अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। ताहम गोदाम में मौजूद लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया है और आग लगने की असल वजह मालूम करने के लिए तहकीकात की जा रही है।
काकीनाडा जिला के रोथला पौड़ी मंडल के गांव सारलंका में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने वाली आग ने देखते ही देखते पूरी बस्ती को अपनी लपेट में ले लिया। इस भयानक हादसे में तकरीबन 40 से जायद कच्ची झोंपड़ियां और घर मुकम्मल तौर पर जल कर राख हो गए, जिसके नतीजे में 50 खानदान खिले आसमान तले आ गए। आग की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर काफी जिदोजहद के बाद मुख्तदिर मुहिम चलाकर शोलों पर काबू पाया, लेकिन तब तक गरीब खानदानों का तमाम घरेलू सामान और अनाज तबाह हो चुका था। मुतासरा खानदानों ने रोते हुए बताया कि उनके पास अब सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं बची है और वो हुकूमत से फौरी इमदाद की अपील कर रहे हैं। मकामी इंतजामिया ने जाए वक़ुआ का दौरा किया और नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है ताकि मुतासरीन की बहाली के लिए जरूरी इकदामात किए जा सकें। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आग लगने के फन्नी वजूहात की मजीद बारीकी से जांच की जा रही है। ఏంట్రా అరే ఒక్క ఇల్లు కూడా గలసిన కంచెలు ఏం లేవండి ఇంకా చూసుకోవడానికి అన్ని లోపల సార్ చూపించుతాము అయిగా మొత్తం లేవండి పడిపోతుంది లోపల దూరం కూడా ఇంకా వస్తున్నారు అంతా ఇంటిమేషన్ ఇచ్చాము పిల్లలకి వండుకోవడానికి అని చెప్పేసి అలాగా వార్చారు. అయితే ఆ అన్నం అట్టి రీతిగానే ఉంది. మీరు చూడొచ్చు, వైఎన్సీ మీడియా ప్రత్యేక కథనాన్ని అందిస్తుంది. సమస్తం మీరు చూడొచ్చు, ఇదిగో మొత్తం కూడా బూడిదైన సంగతి. అంటే కనీసం ఏమీ లేదు, వాళ్ళు తినడానికి వండుకున్న ఆహారం అలాగేనే ఉంది. మీరు చూడొచ్చు విజువల్స్లో. గలసిన కంచెలు ఏం లేవండి ఇంకా చూసుకోవడానికి అన్ని లోపల సార్ చూపించుతాము అయిగా మొత్తం లేవండి పడిపోతుంది లోపల దూరం కూడా ఇంకా महबूब आबाद जिला के मंडल पीडा वंगिरा में एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया है, जहां गुज़िश्ता 30 माह से किराया अदा न करने पर इमारत के मालिक ने मंडल प्रेशर डेवलपमेंट ऑफिसर MPDO के दफ्तर को ताला लगा दिया। इमारत के मालिक का कहना है कि 2.5 साल से जायद अरसा गुजर जाने के बावजूद हुकूमत और मुताल्लिका हुक्काम की जानिब से किराया की रकम जारी नहीं की गई, जिसकी वजह से इसे शदीद माली मुश्किलात का सामना है। दफ्तर पर ताला लगने की वजह से सरकारी काम काज ठप होकर रह गया और दूर दराज इलाकों से आने वाले लोग दोपहर तक दफ्तर के बाहर खड़े इंतजार करते रहे। मालिक मकान ने हुक्काम से दर्दमंदाना अपील की है कि इसके वाजिब अल-अदा किराया की फौरी अदायगी को यकीनी बनाया जाए ताकि वो दोबारा दफ्तर खोलने की इजाजत दे सके। इस वाक़ये ने इंतजामिया की गफलत और सरकारी वाजिबात की अदायगी में होने वाली गैर मामूली ताख़ीर को बेनकाब कर दिया है। मकामी हुक्काम अब इस मामले को हल करने और दफ्तर की सरगर्मियां दोबारा बहाल करने के लिए मालिक मकान के साथ मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। ఇవి రెండు క్లియర్ చేసేంత వరకు నేను ఆఫీసు ఇక్కడ నుండి తరలించే ప్రసక్తి లేదని అందరికీ ప్రభుత్వాన్ని కూడా విన్నవించుకుంటున్నా. దయచేసి ఇది అందరూ కూడా కలెక్టర్ గారు కూడా డిప్యూటీ సీఓ గారు కూడా దీన్ని ముఖ్యమంత్రికి పోవాలని రావాలి కదా సార్. దండం పెడుతుంది సార్, ఏదోటి సార్ నాకు మెయిన్ కరెంట్కి వెళ్ళి ఇంటికి వీళ్ళకి డబ్బులు మనం ఇవ్వాల్సిన మాట వర్షం
సీఓ గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. సీఓ గారు కూడా దీని మీద లెక్క పెట్టారు. గవర్నమెంట్ వస్తే దాని ముందు చెప్తారు. దయచేసి ఇంకొక చిన్న విన్నపం సార్, ఈ డబ్బులు కరెంటు బిల్లు ఇంటి రెంటు క్లియర్ చేసినాక మీరు ఎక్కడ పెట్టుకున్నా నాకు అభ్యంతరం లేదు సార్. అప్పటి వరకు అవుతున్నాం. దయచేసి మీకు డిప్యూటీ గారికి ఎంపీఓ గారికి దయచేసి కండపెట్టి చెప్పేది ఏంటంటే పై ఆఫీసర్లకు సీఎం ఆఫీస్కు ఇది మెసేజ్ మీటర్ చేయండి, ఆ బిల్లులు వచ్చేది చేయండి. దయచేసి మీకు అందరినీ వేడుకుంటున్నాను సార్. నా అప్పటి వరకు మాత్రం దయచేసి ఆఫీస్ కాల్ అయితే నేను చేయలేదు. आंध्र प्रदेश के शहर मुदुनपल्ली में एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया है, जहां निजी इदारे अपोलो फार्मेसी में वो अद्वियात फरोख्त की जा रही है जो हुकूमत की जानिब से सरकारी अस्पतालों के लिए मुख्तस की गई थी। एक मरीज को सरकारी निशान वाली बोतल 493 रुपए में फरोख्त की गई, जबकि मकामी सरकारी अस्पताल में उन जरूरी अद्वियात की शदीद किल्लत है और मरीजों को बाहर से खरीदने का मशवरा दिया जा रहा है। जब इस संगीन बेज़ाब्तगी पर फार्मेसी अमले से पूछगुछ की गई तो उन्होंने मुतज़ाद बयानात देते हुए दावा किया कि शायद किसी मरीज ने गलती से सरकारी दवा यहां वापस कर दी थी और उन्होंने नादानी में इसे कबूल कर लिया। अवामी हलकों ने इस वाक़ये पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए सवाल उठाया है कि सरकारी सप्लाई की अद्वियात निजी स्टोर्स तक कैसे पहुंच रही है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि ये एक बड़े घपले का हिस्सा हो सकता है जिसमें सरकारी अमला और निजी फार्मेसी मालिकान मुलव्वस हैं। महकमा सेहत के आला हुक्काम ने मामले की संगीनी को देखते हुए फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया है और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया है। ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇది ఫోటో తీసుకోండి, ఇది తీసుకోండి. ఇక్కడేముంది, ఇక్కడేముంది గవర్నమెంట్ మందులు అపోలో హాస్పిటల్ ఎలా వచ్చింది? చూడండి, మీ తప్పు కాకపోతే కానీ సప్లయర్స్ ఎవరు, అది ఇంపార్టెంట్ కదా. మాకు అన్నీ కాదు. ఇప్పుడు చెప్పేది వినడం లేదు సార్. మీరు చెప్పింది మేము వినడం లేదు. మేము చెప్పింది ఒక నిమిషం నాకు చెప్పకండి. తీసుకున్నాడు సార్. తీసుకున్న తర్వాత మార్నింగ్ మళ్ళీ రిపీట్ చేశాను, మా పొద్దు ఇది అని లాక్టోజన్ తీసుకున్నాడు. ఆ అమౌంట్ అంతే సార్. మీరు చూడరా, నమ్మకంతో తీసుకున్నాడు. తీసుకుంటారు ఇంజక్షన్ వాడినా యూజ్ చేసాం. हैदराबाद के इलाके अलमास गोड़ा में पीर के रोज ममनुआ चीनी माझे की वजह से एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें एक बुजुर्ग खातून शदीद जख्मी हो गईं। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब खातून मीरपेट पुलिस स्टेशन की हुदूद में सड़क पर पैदल चल रही थीं कि अचानक उनका पांव पतंग के धारदार धागे में फंस गया। नालान से बने इस जानलेवा माझे की वजह से उनके पांव में गहरे जख्म आए और वो सड़क पर ही गिर पड़ें। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर मुतासरा खातून को करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल किया जहां उनका इलाज जारी है और डॉक्टरों ने जख्मों की गहराई को तशवीशनाक बताया है। शहर में पाबंदी के बावजूद चीनी माझे की फरोख्त और इस्तेमाल जारी है जो राहगीरों खुसूसन बुजुर्गों और दो पहिया गाड़ी सवारों के लिए मुसलसल खतरा बना हुआ है। पुलिस ने वाकये का नोटिस लेते हुए नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इलाके में चीनी मांझा इस्तेमाल करने वालों की तलाश शुरू कर दी है। मकामी मकीनों ने पुलिस से मुतालबा किया है कि त्यौहार के सीजन में ऐसे हादसात को रोकने के लिए सख्त गश्त और तलाशी की मुहिम चलाई जाए। संक्रांति की ततीलात के बाइस शाहरा पर गाड़ियों के बेपना रश के दौरान वनस्थलीपुरम और अब्दुल्लापुर मेट के करीब सड़क पर लकड़ी का एक बहुत बड़ा ब्लॉक गिर जाने से ट्रैफिक का निजाम दिरहम बरहम हो गया। इस रुकावट को हटाने के लिए वनस्थलीपुरम ट्रैफिक पुलिस और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने फौरी तौर पर मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया जिसमें 3 जेसीबी मशीनों और 2 बड़ी क्रेनों की मदद ली जा रही है। सड़क के बीचों बीच लकड़ी का ये भारी टुकड़ा गिरने की वजह से विजयवाड़ा जाने वाली शाहरा पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई है जिसमें त्यौहार के लिए अपने आबाई मकामात को जाने वाले मुसाफिर फंसे हुए हैं। पुलिस एहलकार तपती धूप में ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ने और लकड़ी को हटाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं ताकि मुसाफिरों की आमद और रफ्त बहाल की जा सके। हुक्काम ने गाड़ी सवारों से ताउन की अपील की है और बताया है कि भारी मशीनरी के इस्तेमाल की वजह से ऑपरेशन में कुछ वक्त लग सकता है।
इस अचानक पेश आने वाले वाक़ये ने त्यौहार की खुशियों में मगन मुसाफिरों के लिए आर्जी तौर पर बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। संक्रांति के त्यौहार के मौके पर हैदराबाद से आंध्र प्रदेश जाने वाले मुसाफिरों की भारी तादाद के बाइस आदादरी जिला के चोटविपल मंडल में वाक़े पिनतंगी टूल प्लाजा पर बदतरीन ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। दरबादूजी वाड़ा कौमी शाहरा पर गाड़ियों का इस कदर रश है कि टूल प्लाजा से तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है। लोग अपने आबाई गांव जाने के लिए घरों से निकले हैं, जिसकी वजह से शाहरा पर ट्रैफिक का दबाव रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गया है। ट्रैफिक पुलिस और टूल प्लाजा के हुक्काम सूरत-ए-हाल पर काबू पाने और गाड़ियों की आमद और रफ्त को बहाल करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मुसाफिरों की गैर मामूली तादाद के सामने ये इंतजामात नाकाफी साबित हो रहे हैं। घंटों ट्रैफिक में फंसे रहने की वजह से मुसाफिरों बिलखुसूस बच्चों और बुजुर्गों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुक्काम ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो सफ़र के दौरान सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें और मुमकिन हो तो ट्रैफिक की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल देखकर मुतबादिल औकात का इंतखाब करें। सोशल मीडिया पर गवाह से ताल्लुक़ रखने वाली एक दिल छू लेने वाली वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक गैर मुल्की खातून सैयाह को अपनी मदद करने वाली रपो बाइकर से लिपट कर रोते हुए देखा जा सकता है। ये वाक़या 12 जनवरी की रात इस वक्त पेश आया जब डिजिटल नक्शे की गलती की वजह से सैयाह खातून एक पिल पर रास्ता भटक कर शदीद परेशान हो गई थी। रपो राइडर सिंधु कुमारी राय ने न सिर्फ इस परेशान हाल खातून को तसल्ली दी बल्कि उन्हें बहिफाजत उनके होटल पहुंचाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि जज्बाती सैयाह खातून जब किराया अदा करने की कोशिश करती हैं तो सिंधु मुस्कुराते हुए रकम लेने से इनकार कर देती है। गैर मुल्की खातून ने अश्कबार आंखों के साथ अपने खौफ का तज़किरा किया और सिंधु की बहादुरी और अखलाक की तारीफ की। इंटरनेट पर अब तक इस वीडियो को 30 लाख से ज़ायद लोग देख चुके हैं और हर कोई भारतीय खातून बाइकर के इस जज्बा हमदर्दी को सराह रहा है। सिंधु कुमारी ने बाद में इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने सैयाह खातून को सही सलामत उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया है। It's okay, I don't want. Sorry. No, it's okay. So, my Insta family are there. You can search me on Instagram, Sindhu Kumari Rai. Yeah? Okay. You can follow me there. Okay. So, tell my friends that follow me. चलो बाय मैम, वी मीट यू या सो गाइस, मैंने फाइनली मैम को कोकोनट ग्रोव में पहुंचा दिया हूँ। यू लॉस्ट ऑन द बीच राइट, एंड देन यू वर्क करते करते वो पहुंच गई थी कुलवा बीच पे, है ना मैम? यू स्टार्टेड फ्रॉम योर बैतलवती बीच एंड यू वॉक्ड यू रीच्ड कुलवा। कम दिस साइड। So finally I dropped you here. Any problem you can tell me ma'am. No, you can go now, no? Okay. Yeah? Chalo. Bye then. Yeah, bye. विजयवाड़ा के मशहूर कुनिक्का दुर्गा मंदिर में कार पार्किंग के मामले पर सिक्योरिटी एहलकार और एक ज़ायर के दरमियान होने वाली तल्ख कलामी ने इस वक्त संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर ली जब एहलकार ने मुबैना तौर पर शहरी पर तशद्दुद किया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पार्किंग की जगह को लेकर शुरू होने वाली मामूली बहस इतनी बड़ी कि सिक्योरिटी अमले के रुकन ने आपे से बाहर होकर ज़ायर के साथ हाथापाई की और इसे जिस्मानी तौर पर हरासा किया। इस वाक़ये की खबर फैलते ही दीगर ज़ायरीन में शदीद गम और गुस्सा पैदा हो गया और उन्होंने मंदिर की इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए जिम्मेदार एहलकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मंदिर आने वाले लोगों ने अमले के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि अकीदतमंदों के साथ ऐसा सलूक नाकाबिल बर्दाश्त है और इससे मंदिर के तकद्दुस को ठेस पहुंची है। इस हादसे ने एक बार फिर हुजूम के इंतजाम और सिक्योरिटी अमले की तरबियत के हवाले से कई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। इंतजामिया ने मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि हकीकत का पता लगाकर मुनासिब कानूनी और महकमाना कार्रवाई की जा सके। आप
उत्तर प्रदेश के शहर मथुरा के जिलाई अस्पताल में मंगल के रोज एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया जब एक ई रिक्शा ड्राइवर अपनी जेब में 1.5 फुट लंबा जिंदा सांप लेकर वार्ड में दाखिल हो गया। 39 साला दीपक नामी इस शख्स का दावा था कि इस सांप ने इसे डस लिया है, इसीलिए वो इलाज और टीका लगवाने के लिए इसे अपने साथ लाया है। अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट नीरज अग्रवाल ने बताया कि जेब में सांप की मौजूदगी से वहां मौजूद दीगर मरीजों और अमले में सख्त खौफ व हरास फैल गया, जिस पर ड्राइवर को फौरी तौर पर सांप बाहर ले जाने की हिदायत दी गई। इंतजामिया ने फौरन पुलिस को मतला किया, जिसने मौके पर पहुंचकर बहिफाजत सांप को कब्जे में लेकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। तिब्बी हुक्काम को शुबा है कि ये सांप मुमकिना तौर पर दीपक ने खुद पाल रखा था, क्योंकि इसका रवैया गैर मामूली था। फिलहाल ड्राइवर का इलाज जारी है और पुलिस इस वाकये के पीछे की असल कहानी जानने के लिए तहकीकात कर रही है कि आया ये वाकई सांप के डसने का मामला है या कोई शरारत। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? मैं आधा घंटे पहले आया था यहाँ पे, मैंने भैया सांप ने काट खा लिया। कहाँ है सांप? सांप कहाँ है? दिखाओ। इसने खा लिया है आपको? हाँ। नहीं लेके क्यों? इधर साइड में और जेरा निशान आधे घंटे पहले आया था, मना कर दी। जब हार जाओ यहाँ से, वृंदावन से यहाँ तक आ गया, जब रोड पे जाम लगाया मैंने। अच्छा, यहाँ सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं हो तो कहाँ जाएगा आदमी फिर? कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने हाल ही में अस्कोली तलबा के साथ अपनी एक दिलचस्प मुलाकात का तज़किरा करते हुए मुआशरे में मोहब्बत और बाहमी एहतराम की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने 7वें जमात के बच्चों से उनकी पसंदीदा उस्तानी के बारे में पूछा तो बच्चों ने एलिस मैम का नाम लिया और उसकी वजह उनका शफकत आमेज रवैया, तलबा की बात सुनना और पढ़ाई के दौरान खुशगवार माहौल फराहम करना बताया। राहुल गांधी ने इस मिसाल को सियासत और मुक्तसाजी से जोड़ते हुए कहा कि सीखने और सिखाने के लिए वही माहौल बेहतरीन होता है जहां प्यार, हमदर्दी और एक दूसरे के लिए इज्जत मौजूद हो। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी सियासी जिदोजहद का असल मकसद भी एक ऐसे हिंदुस्तान की तामीर है जहां लोग एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखें और एक दूसरे की बात गौर से सुनें। राहुल गांधी के मुताबिक मुल्क की तरक्की तभी मुमकिन है जब हम तमाम रवायात, जुबानों और मज़ाहिब का एहतराम करें और नफ़रत के बजाय हमदर्दी को फ़रोग़ दें। उनका ये पैगाम सोशल मीडिया पर काफ़ी सराहा जा रहा है, जिसमें उन्होंने इंसानी रिश्तों में नरमी और वक़ार को कौमी इत्तेहाद के लिए लाज़मी करार दिया है। Just before I came here, I had a chat with some of your students. 10 young ladies from 7th grade had a chat with me and I asked them a few questions. And I asked them, tell me, who's the best teacher? I asked one of the girls. I said, tell me, who's the best teacher who teaches you? And she said, I'm sure she's here. And she said, Alice ma'am. So I'd like